خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آج کے اچھے خوبصورت پروگرام کے لیے بھی ہم ایمان رکھتے ہیں یقیناً آپ سب بڑی برکت پائیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے. آج چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 43 ہے, جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے. مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلے. ہمیں جوائن کیا ہے رائٹ ریورنڈ بشپ آف لاہور عرفان جمیل صاحب. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آئیے ہم دعا کریں. پیارے آسمانی باپ, جب ہم تیرے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو تیرا پاک روح ہماری سہایتا کرتا ہے, مدد کرتا ہے کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں. اور جب خدا لازر کی بہن مریم تیرے قدموں میں بیٹھتی تو تو نے ایک کامنٹ پاس کیا تھا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا. خداوند آج تو نے ہمارے لیے اچھا حصہ رکھا ہے. اپنے پاک روح کو خداوند ہماری مدد کے لیے بھیج, تاکہ ہم پاک روح کی روشنی میں اس کی مدد سے خداوند ہم تیرے کلام کو سمجھیں اور سمجھا سکیں. بزرگ بشپ صاحب کے لیے, پاسٹر منور خورشید کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اس نشست کو ہم خداوند تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں کہ خداوند ہمارے آج کی باتیں, سوالات, جوابات کے وسیلے سے ہم سمجھنے اور سمجھانے میں کامیاب ہوں اور تیرے پاک روح اور تیرے نام کو جلال ملے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 4واں باب اور اس کی 43ویں آیت سے لے کر 54ویں آیت تک خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا, کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اس سے قبول کیا, اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا, کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے. پس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا, اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا. وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش, کیونکہ وہ مرنے کو تھا. یسوع نے اس سے کہا, جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے. بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا, اے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل. یسوع نے اس سے کہا, جا تیرا بیٹا جیتا ہے. اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا. وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اس سے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے. اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا. انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی. پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے, اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا. یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, یقیناً گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اس پہ سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور آج ہم گفتگو کا آغاز بشپ صاحب سے کریں گے. بشپ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 47ویں آیت میں لکھا ہے, وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش, کیونکہ وہ مرنے کو تھا. پلیز اس کی وضاحت فرما دیں, اگرچہ اس کا کانٹیکس جو ہے وہ 46ویں آیت میں بھی موجود ہے. پلیز آپ اس کی ضرور وضاحت کر دیں. تھینک یو سو مچ. بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یوحنا کی انجیل میں یوحنا جو ہے وہ چند ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو غیر یہودی ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے, یہاں تو لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کا ایک ملازم تھا, لیکن وہ ملازم نہیں تھا بلکہ ایک آفیسر تھا وہ. اور اس زمانے میں
जो यहूदी थे वो गैर यहूदियों के पास नहीं जाया करते थे, उनके घर में जाना वो कोई ऐसी आम बात नहीं समझा जाती थी, क्योंकि यहूदी अपने आप को ऊपर समझते थे। ये शख्स जो है ये काफ़ी मुश्किल में है जब वो अपने बेटे की दरख्वास्त के लिए लेकर आया है। एक तो हम देखते हैं कि वो तकरीबन 20 मील का फासला तय करके यीशु के पास आया है। दूसरी बात जो यहाँ पर नज़र आती है कि उसका जो बेटा है वो सिर्फ बीमार ही नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि वो कहता है कि वो मरने के करीब है। तीसरी चीज़ जो हमें इस चीज़ में नज़र आती है कि इस शख्स ने सिर्फ सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं किया, बल्कि वो ऊपर वाली आयत में कहता है कि उसने देखा कि यीशु मसीह मौजज़ात कर रहे हैं। काना गलील में उस शादी के तल्लुक़ से तस्वीर हमें नज़र आती है कि वहाँ पर भी खुदा ने काना गलील में मौजज़ा किया। फिर हम जब यूहन्ना की इंजील के 30 बाब में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी एक हमें ज़िंदगी का मौजज़ा नज़र आता है। निकोदेमुस जो है, जो दूसरा शख्स है, उसके तल्लुक़ से। और फिर सामरी औरत जो है उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया है। तो ये सारी चीज़ें उसने देखी हैं और उसके बाद वो कहता है कि तू चल कर। अब दो चीज़ें यहाँ पर नोट करने वाली बात है। एक तो ये है कि उसने देखा है तो उसका ईमान ये है कि ये शख्स जो है ये शिफा दे सकता है। और फिर दूसरी बात जो वो दरख्वास्त करता है उसके सामने आके वो ये कहता है कि तू चल और मेरे बेटे को शिफा दे, क्योंकि वो मरने को है। तो यहाँ पर जो तस्वीर हमें नज़र आती है कि दो तरह का ईमान है, आगे जाके और हम देखेंगे। एक तो उसने दूसरे मौजूदात देखे, फिर उसको इस बात का यकीन आ गया कि ये जो शख्स है ये शिफा दे सकता है, इसके लिए भी। और तीसरी बात है वो ये सोचता है कि मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैं तो बादशाह के शायद नीचे हूँ, ऑफिसर हूँ, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को छोड़ के अपने बच्चे की सेहत के लिए यीशु मसीह के पास दरख्वास्त लेकर आया है। सो कभी कभी जो हमारी मुश्किलात हैं, हमारी जो औलाद है, वो हमें बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। और यहाँ पर उसकी वो तस्वीर हमें नज़र आती है कि मौजज़ा किया है, और अब वो इस तस्वीर की तरफ और आगे चल के देखेंगे कि यीशु मसीह का जो जवाब है वो बड़ा दिलचस्प हमें नज़र आता है। प्रेज गॉड, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और बिशप साहब चूँकि वो ऑफिशियली तो ये ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे और गुज़श्ता भी उन्होंने बहुत अहम ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दी, लेकिन बेसिकली खुदावंद ने जो उनके अंदर खिदमत रखी है वो एक इवेंजलिस्ट की, कि वो ख़ास खुदा के कलाम को इवेंजलाइज करने के लिए, बशारत देने के लिए बुलाए गए हैं। और बड़ी ज़बरदस्त उनकी अप्रोच है इस टेक्स्ट के ताल्लुक से। पहले भी हम उन्हें बुलाते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है खुदा के कलाम को लेकर। तो यहाँ पर ख़ास जिस चीज़ की तरफ इशारा किया बिशप साहब ने कि ये शख्स इसके लिए अगरचे बहुत सारी चीज़ें रुकावट का सबब हैं या प्रॉब्लम का सबब हैं, लेकिन तो भी वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है ताकि उसका बेटा जो है वो शिफा पा जाए, ताकि उसको निजात और रिहाई मिल जाए और उसकी जान बच जाए। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है किसी भी माँ बाप के लिए कि अगर वो अपने बच्चे को इस हालत में देख रहे हैं कि वो मरने के करीब है, कई नशा करते हैं, कई और ख़राबियों में, बदी में, बदकारी में, या कोई और ऐसी इल्लत है जिसमें वो लगे हुए हैं, तो माँ बाप के पास जो एक बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ से उनके बच्चे की ज़िंदगी बहाल हो सकती है, जहाँ से उन्हें रिहाई मिल सकती है, याद रखें कि वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आप भी अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, बहाल देखना चाहते हैं, उनकी सरफराजी, कामयाबी देखना चाहते हैं, तो वक्त है कि आप भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ अपने बच्चों की दरख्वास्त को लेकर। और देखें इस के लिए आगे जब हम सीखेंगे कि कैसे इसकी दरख्वास्त ही से सारा काम हो गया है, आप ही की दरख्वास्त से खुदा आपके बच्चों को बहाल कर देगा, रिस्टोर कर देगा, उनकी ज़िंदगियां बहाल करेगा अगर आप मसीह के पास आएंगे। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर,
آپ بھی کہیں گے سارے جیوگرافیکل کوشچن جو ہیں وہ میں نے جغرافیہ پڑھا ہے. تو یہاں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, اس سے ہمارے ناظرین کی بڑی ہیلپ ہو رہی ہے, مدد ہو رہی ہے, اور ہم آپ سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. یہاں ایک اور جگہ کا اب ذکر آ گیا ہے, کانہ گلیل, اور بڑی اہم جگہ ہے, چونکہ مقدس یوحنا نے آغاز ہی اس بات سے کیا ہے, کانہ گلیل سے خداوند یسوع مسیح کے پہلے معجزے کا تعلق ہے, ذکر ہے. تو کانہ گلیل کے تعلق سے ہماری رہنمائی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کفرنہوم کے بارے میں, کفرنہوم اور گلیل میں فاصلہ کتنا ہے, اور یہاں پر جو خاص خدمت ہے وہ کیسی رہی ہے, پلیز. شکریہ فیض صاحب, بڑی اچھی بات ہے. یہ اچھا کہ میں نے اپنی گریجویشن تک جغرافیہ پڑھا ہوا ہے, تھوڑا سا مجھے اس سے پتہ چل جاتا ہے سمتوں کا اور اس کی ساری چیزوں کا, یہ تھوڑی ہیلپ ملتی ہے. اور میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ہمیں بائبل کا جغرافیہ نہیں آتا تو آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں سلو ہو جائیں گے, کمزور رہیں گے. تو اچھی بات ہے کہ بائبل کی جو ڈیمانڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ علم آنا چاہیے, چاہے وہ سائنٹیفک ہو, چاہے وہ آرکیالوجی سے متعلق ہو, چاہے وہ جغرافیہ سے متعلق ہو, وہ آنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بائبل از دا مدر آف سائنسز. تو کانہ گلیل جو ہے پادری صاحب, یہ بڑا مزے کا لفظ ہے کانہ. کانہ ہماری پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو عبرانی والا ہے وہی پنجابی والا ہے, سیم ہے. اور کانہ وہی جیسے ہم اردو میں سرکنڈا کہتے ہیں, تو کیونکہ کانہ گلیل ہے تو یہ سرکنڈوں کی جگہ ہے. اس کو اگر ہم اس کی وجہ تسمیہ دیکھیں کہ اس کو کیوں نام رکھا گیا اس کا, کانہ گلیل جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے پہلا معجزہ دکھایا تھا, اور ایک خیال کے مطابق شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں مقدسہ مریم کے ریلیٹیوز بھی رہتے تھے, اور انہی کی نسبت سے وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کی ماں کو اور اس کے شاگردوں کو وہاں پر دعوت تھی, جہاں پر وہ مقدس یوحنا کی انجیل کے دوسرے باب میں شادی کا, کانہ گلیل میں شادی کا ذکر ہے. تو وہاں پر کیونکہ مقدسہ مریم کے رشتہ دار تھے تو وہاں پر ان کو دعوت دی گئی تھی. سو پہلا معجزہ جو ہے وہ وہاں پر ہوا تھا. اور پھر یہاں اگر آپ اس کی 54ویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ یہ دوسرا معجزہ ہے. تو یہ بھی وہی جگہ ہے کانہ گلیل جہاں پر دوسرا معجزہ ایک ملازم کے بیٹے کی شفا ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 21ویں باب کی 2 آیت دیکھیں تو یہاں ایک اور بڑی شخصیت ہے جو کانہ گلیل میں موجود ہے, وہ نتنیل ہے, وہ وہاں موجود ہے. تو یعنی بائبل کے ساتھ لنکڈ جو لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہے. خداوند یسوع مسیح جہاں پر تھے ناصرت میں, وہاں سے یہ 9 میل اوپر کی طرف شمال کی طرف ہے. یعنی ناصرت جو ہے وہ جنوب میں ہے, تھوڑا ہے گلیل میں ہی, لیکن 9 میل اگر اوپر جائے شمال کی طرف جائے تو یہ 9 میل اوپر ہے. کفرنہوم جو ہے یہ جو گلیل کی جھیل ہے اس کے شمال مغربی ساحل پر واقع ہے, اور یہاں فشنگ اس لیے زیادہ ہوتی تھی کہ یہ جھیل بڑی مشہور تھی فشنگ کے لیے, ماہی گیری کے لیے. اور یہاں سے 2 شاگرد بھی خداوند یسوع مسیح نے چنے تھے جو اپنے جال دھو رہے تھے اور کام شام کر رہے تھے. سو خداوند یسوع مسیح کی جو گلیلی خدمت ہے اس کا جو مرکز ہے وہ کفرنہوم بھی رہا ہے, زیادہ تر کفرنہوم ہی رہا ہے. کانہ میں آنا جانا تھا, اور ناصرت ان کا ویسے ہوم ٹاؤن تھا جو مقدس یوسف کی وجہ سے یہاں پر موجود ہے. سو یہ جو شہر ہے اس میں خداوند یسوع مسیح نے معجزات کی ہے, کفرنہوم میں بھی کی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ برباد ہو جائے گا. اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ بعد میں برباد ہو گیا تھا, یہ شہر کفرنہوم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. تو فاصلہ اگر آپ دیکھتے ہیں کانہ گلیل کا اور کفرنہوم کا, اس کا اگر آپ کلومیٹرز میں جائیں گے تو یہ جو میراتھن ریس ہوتی ہے 26 کلومیٹر کے قریب ہوتی ہے, تو یہ 26.5
51 किलोमीटर है, यानी 26.5 किलोमीटर के करीब अगर आप काना से ट्रैवल करेंगे कफरनहूम तक तो ये करना होगा। अगर माइल्स में जाना है तो ये 16.5 मील के करीब इन्होंने निकाला है। मैं जब भाई साहब आपका सवाल देख रहा था तो उसमें लिखा होता कि यहाँ से उसका फासला कैसा है, तो मैंने समझा शायद आप लाहौर की बात कर रहे हैं तो मैंने एहतियातन लाहौर से भी ये निकाल लिया। अगर आपने लाहौर से यहाँ जाना है तो ये 3683 किलोमीटर है अगर आपने वहाँ पर जाना है तो मीलों में अगर जाएंगे तो ये 2289 मील है अगर यहाँ से अगर आपने कहेगा जब हमने काना जाना है तो ये है। सो काना गलील जो है ये खुदावंद यसु मसीह की ऑफ एंड ऑन खिदमत का मरकज़ रहा है, यानी ये मसलसल यहाँ पर वो नहीं है। ये मौजज़ा चाहे काना गलील में से सादर हुआ है लेकिन मौजज़ा जो वकूअ पजीर हुआ वो कफरनहूम में हुआ है, यानी ये आगे आके इसको देखेंगे हम क्या है। सो काना गलील जो है ये इम्पॉर्टेंट जगह रही है। कफरनहूम ये सारे शमाली इलाका जात हैं जहाँ पर खुदावंद यसु मसीह ने अपनी आइटिनरेंट मिनिस्ट्री जो है वो की है, वो एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें नासरत भी आता है और बहुत सारे जो गांव और शहर और कस्बे हैं ये इधर में आते हैं। सो इनका आपस में इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है, ये 15-15, 20-20 किलोमीटर के और माइल्स के फासले पर है। और यही वजह है कि ये सारा जो इलाका है वहाँ पर खुदा यसु मसीह की शोहरत फैल गई हुई है। और जैसे ही लोग उसको महसूस करते हैं, जैसे ये मुलाजिम है, जैसे उसको पता चला कि वो कफरनहूम में आया है या गलील में आया है, काना गलील में आया है, तो वो कफरनहूम से यहाँ डाउन आया है यहाँ पर ताकि वो उससे ये मौजज़ा हासिल कर सके। सो खुदावंद यसु मसीह की ये खिदमत जगराफियाई तौर पर बड़ी पुरअसर है और कामयाब रही है, ताकि करीब करीब जितने भी कस्बे हैं इनमें खुदावंद यसु मसीह ने खूब एवेंजलिज्म किया है और खुदावंद के बादशाही का क़याम किया है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बातें। खुदावंद यसु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो तालीम के साथ साथ मिरेकल्स और मौजज़ात भी खुदावंद यसु मसीह ने ज़रूर किए हैं, लेकिन याद रखें खुदावंद यसु मसीह ने इसमें एक बड़ा तवाज़ुन रखा है और किसी भी लिहाज से आप इस तवाज़ुन में ख़राबी नहीं दे सकते हैं, खलल नहीं देख सकते हैं। यानी खुदावंद यसु मसीह की जो खिदमत है, इसकी जो प्रायोरिटी है, जो तरजीह है, वो हमेशा ही तालीम रही है। वो हमेशा ही इस बात पर ज़ोर रहा है कि वो मुनादी करें, वो तालीम दें, लोगों को, रूहों को जीतें। अगरचे साथ मिरेकल्स भी होते हैं, मौजज़ात भी होते हैं, लेकिन खुदावंद यसु मसीह का जो मेन फोकस है वो याद रखें तालीम देना है, सिखाना है, लोगों को इवेंजलाइज करना है, उन तक गॉस्पल इंजील के पैगाम को फैलाना है ताकि वो बादशाहत को कबूल करें, ताकि वो बादशाहत में शामिल हो सके। मुक़द्दस मरकुस बयान करते हैं कि खुदावंद यसु मसीह बहुत सारे मिरेकल्स कर रहे थे, मौजज़ात कर रहे थे और पतरस की सास के घर ठहरे भी हुए थे और सुबह सवेरे ही एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो खुदावंद यसु मसीह को ढूंढने के लिए ढूंढ क्यों रहे हैं, मिरेकल्स के लिए, मौजज़ात के लिए। यसु मसीह वहाँ से निकल चुके थे और शागिर्द खुदावंद यसु मसीह के पास गए कि लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। और खुदावंद यसु मसीह जानते हैं क्यों ढूंढ रहे हैं। खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि ठीक है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन आओ हम जाकर इंजील की मुनादी करें, क्योंकि हमारा काम, सबसे जो पहला काम है वो इंजील की मुनादी है। बड़ा तवाज़ुन आपको मिलेगा खुदावंद यसु मसीह की खिदमत में। तो अगर आप सिर्फ मिरेकल्स के पीछे, मौजज़ात के पीछे भागते रहेंगे, आजकल मैंने कई खुदाम को भी देखा है कि वो समझ गए हैं कि हमारे लोगों की साइकी क्या है या हमारे लोग चाहते क्या हैं। अब उन्होंने, कई लोगों ने ऐसे अपना वो काम बना लिया है, जी हम ये कर लेते हैं, हम बदरूहों को निकालते हैं, हम फलां करते हैं, फलां, और उन्होंने ख़ास एक नाम रखा है बदरूहों के केस हम डील करते हैं। मतलब अजीब अजीब अपनी टर्मिनोलॉजीज़ बनाई हुई हैं। सो चूँकि ये समझते हैं कि लोगों को इसकी ज़रूरत है, इन्होंने उन लोगों को जो उनकी सोच है, ज़रूरत है, जो उनकी साइकी है, उसको समझकर अपनी खिदमत को भी उस तरह का बना लिया है। लेकिन याद रखें हमारा जो सबसे बड़ा मतमाए नज़र है, जो फोकस करने की जगह है, वो लोग नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए, वो ये है कि मसीह ने हमें कौन सा पैटर्न दिया है। आपने वसीम साहब एक दफ़ा जिक्र किया था खुदावंद यसु मसीह की खिदमत का कि उसमें
जो पहली दूसरी तीसरी पोजीशन, मैं चाहता हूँ ज़रा अपने नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हम मत्ती की इंजील के 9 बाब की 35वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर एक इवेंजलिज्म का तरीका बताया गया है कि हम किस तरह से बशारत कर सकते हैं। तो वहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि वो गांव-गांव शहर-शहर जाके कलाम की तालीम देते रहे और बाद में बादशाही की मुनादी करते रहे और नंबर 3 पर बीमारों को शिफा देते रहे। सो बाइबल मुकद्दस में जो सेटिंग है, जो बाइबल मुकद्दस की साइकोलॉजी है, यानी बाइबल मुकद्दस जब लिखती है तो पहले वो चीज़ लिखी जाती है जो सीनियर हो और बाद में जूनियर चीज़ें आती हैं। यानी बाइबल का स्टाइल ये है कि पहले नंबर 1, जैसे शागिर्दों का नाम सबसे ज़्यादा पतरस का आता है क्योंकि वो सीनियर था, और हमारे यहाँ जूनियर को पहले रखा जाता है और बाद में कलमात बरकत देने के लिए बेशे साहब को बुलवाते हैं। तो बाइबल मुकद्दस सीनियर को पहले लिखती है। बाइबल मुकद्दस ने जो अगर 2 भाइयों का जिक्र करना है ना, जिसका पहले नाम है वो बड़ा है। ये अंडरस्टैंडिंग है बाइबल की। सो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस ने नंबर 1 पे तालीम को रखा है, नंबर 2 पे मुनादी को रखा है और नंबर 3 पे हमने शिफा को रखा है। शिफा को हम ये नहीं करते कि ये नहीं है, ये भी खुदा की बादशाही में है। ये खुदा में यीशु मसीह का 3-fold मेथड ऑफ मिनिस्ट्री है। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो तालीम को है, तालीम को है, यानी टीचिंग को है, डिडाके, और उसके बाद बशारत को है, और आखिर में जो है तीसरे नंबर पर शिफा है। और हमने क्या रखा है कि हमने नंबर 1 शिफा को कर दिया हुआ है और तालीम को नंबर 3 पे रख दिया हुआ है। शुक्र है मनादी होते ही अली। असल में ना कुछ कहूँ मैं, मेरा ख्याल है कि यही बात जो आप कर रहे हैं, मसीह यीशु के जितने मौजज़ात हैं उसके साथ सिर्फ जिस्म ही नहीं है, उसके साथ रूह की भी बात है। और अब ये दोनों मौजज़े जो यहाँ पर हैं, मैं इसको देख रहा था जैसे आप कह रहे हैं कि जो काना गलील में पहला मौजज़ा था वो इंतहाई एक खुशी की बात है, लेकिन उस खुशी के अंदर गम आ गया और फिर यीशु मसीह उस गम को किस तरह से दूर करते हैं। ठीक है, और उसमें जो ख़ास लेसन है वो उसने परसुएड किया डिसाइपल्स को, जाके देखो ये क्या काम हमें नज़र आता, उनको तालीम दी कि क्या हो सकता है। ये जो इसके शिफा वाली बात है, ये इंतहाई अलमिये की बात है। वो कहता है करीबुल मर्ग है, और यीशु मसीह यहाँ पे परसुएड कर रहा है किसको? एक नोबल जेंटलमैन को। उसको कह रहा है कि जाओ तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और सामरी औरत है, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो बगैर देखे ही मान लिया। वो कहते हैं अब हमने देख लिया उसकी सारी चीज़, और आगे जाके 20वें बाब में यही चीज़ जो अन्ना कहता है कि बगैर उसके देखे हुए वो ईमान ले। तो वही बात सब जो हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह हर मौजज़े में से एक सिखाता था। लादर भी मर गया तो उसको कहता है ये जी उठेगा, पर तू देखेगी कि क्या इससे जो चीज़ आती है। सो याद रखें, शिफा जो आप बात कर रहे थे, शिफा को हासिल कर लेते, शाफी को छोड़ जाते हैं। तो कई यीशु मसीह के लोग शागिर्द थे, उन्होंने कहा वो छोड़ के अपना सब कुछ बर्तमाई उसके पीछे हो लिया। तो मैं समझता हूँ कि हम जितने एवेंजलिस्ट हैं, जितने हैं, इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है। हमारी भी कभी कभी कमी है ना। हम क्या कहते हैं, वहाँ आज जाएंगे मोजज़ात होंगे, आप शिफा पाएंगे। हम कभी नहीं कहते, बहुत कम कहते हैं कि आज जो शिफा देने वाला है वो मिलेगा तो फिर आपके पास चीज़ नहीं होगी। तो हम कोशिश करते शिफा होगी ताकि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, है ना। बट आई थिंक व्हाट इज़ द एसेंस, याद रखें कि इलाही शिफा होगी, आप फिर भी बीमार होंगे, फिर भी मर जाएंगे, लेकिन यीशु के साथ जिंदगी होगी ना, तो फिर मरेंगे भी तो उसके साथ ज़बरदस्त। प्रेज गॉड। मैंने पहले कहा था कि इनके अंदर दरअसल इवेंजलिस्ट है, बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट, और खुदा उनका शुक्र हो कि जो बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन नाज़रीन, जैसे वसीम साहब ने भी इस बात का तज़किरा किया है, खुदावंद यीशु मसीह की जो 3-fold मिनिस्ट्री है, सबसे पहला जो काम है वो टीचिंग है, तालीम है। लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं आज क्यों ये शराब पीने वालों का, झूठ बोलने वालों का, कसम खाने वालों का इजाफा होता जा रहा है, क्यों चोरियां करने वालों का इजाफा होता जा रहा है। तालीम की कमी है, चर्चेज़ में कलाम नहीं सिखाया जा रहा। बहुत कम चर्चेज़ हैं जिनमें खुदा के कलाम को प्रीच किया जा रहा है। चर्च को ज़रूरत है, कलीसिया को ज़रूरत है कलाम की, दिन रात वहाँ कलाम सिखाया जाए, तरबियत दी जाए,
تاکہ آگے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں اور جو آگے جا کر معاشرے میں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہیں، وہ جا کر مسیح کی انجیل، مسیح کی گاسپل کو پیش کرے، ان کا کریکٹر، ان کا کردار وہاں پر پیش کرے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو الگ کیا گیا ہے، بلائے گئے لوگ ہیں۔ اور میں کل بھی ایک کسی سے بات کر رہا تھا کہ اگر 100 لوگ کام کریں، مجھے کسی نے کہا کہ میرے لیے، وہ ایک شخص تھا، مجھے کہتا میرے لیے دعا کریں کہ میری ایک ایسی جگہ ڈیوٹی لگ گئی ہے جہاں پہ میں اکیلا ہی کرسچن ہوں۔ تو میں حیران تھا کہ آپ دعا کیوں کروا رہے ہیں اس بات کے لیے؟ آپ کو خدا نے پرپزلی وہاں پر رکھا ہے اور آپ اس وجہ سے خوش ہوں، اور اس بات کے لیے خدا نے رکھا ہے کہ آپ وہاں پر اپنا کریکٹر دکھا کر، اپنی سروس دے کر آپ ثابت کریں کہ آپ مسیحی ہیں، اور مسیحیوں کا کردار، کام جو ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ ہے، منفرد ہے۔ مسیحی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، قسم نہیں کھاتے، بے ایمانی نہیں کرتے، ٹائم چوری نہیں کرتے، کسی بھی لحاظ سے دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ثابت کریں تاکہ لوگ آپ کے وسیلے برکت پائیں۔ ہمیں جس جگہ رکھا گیا ہے، ہمیں پرپزلی رکھا گیا ہے۔ اگر پاکستان میں ہے تو یہ پرپزلی ہے، خدا کا مقصد، پلان، منصوبہ یہ ہے کہ آپ یہاں خدا کا جلال ظاہر کریں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے۔ بشپ صاحب سے جانیں گے، گفتگو کا دوبارہ آغاز انہی سے کریں گے۔ بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ نے بڑی اچھی گراؤنڈ بنائی ہے اس پیسج، اس ٹیکسٹ کی، جو خاص اس شخص کے تعلق سے ہے جو بادشاہ کا ملازم ہے، جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ ترجمہ چونکہ ملازم کیا گیا ہے، اگرچہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی آفیسر ہے۔ بہرحال چونکہ بادشاہ کا تو وہ اوبویسلی ملازم ہی ہے، اگرچہ وہ آفیسر ہے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 48ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ کئی دفعہ جب ہم ایسے حوالہ جات پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں کہیں ایسی گفتگو بھی لگتی ہے جیسے غیر منطقی ہے، اس کا شاید اس ٹیکسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے۔ لیکن جب غور کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، آگے پیچھے جو سیاق و سباق ہے اس پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ غیر منطقی نہیں ہے بلکہ یہ منطقی۔ آپ اس کو ذرا ہمارے سامنے بیان کریں، ناظرین کو بھی ایڈریس کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ غیر منطقی نہیں ہے، اللاجک بات نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے اس کانٹیکسٹ کو ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اگر ہم اس پورے کے پورے حوالے کو دیکھیں تو اس سے پہلے کی جو آیات ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے وہ جنرل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک عام بات کر رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اپنے دیش میں قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جس کا شروع میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی معجزات دیکھے ہیں، 2-3 معجزات دیکھے ہیں، اور پھر اس کو دیکھنے کے ساتھ ابھی جب یہ آگے آئے ہیں تو آگے آ کے بھی یہی توقع کر رہے ہیں کہ اب کون سا معجزہ ہوگا، اب کون سا معجزہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کئی دفعہ یسوع نے کہا تم میرے پیچھے اس لیے آتے ہو کہ روٹیاں ملیں گی تمہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے دور میں تو لوگ روٹی کے لیے بہت ہی پیچھے، 15 روپے کی روٹی ہوگی، 25 کا نان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یسوع کے پیچھے چلتے ہیں پیسے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ کلام روزمرہ کی زندگی کی بھی بات کرتا ہے، کوئی صرف تھیولوجی کے اوپر نہیں بات کرتا۔ اب اس نے کہا کہ اس لیے آئیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ گلیل میں اپنے شہر میں عزت بھی نہیں ہے۔ عزت اس لیے نہیں ہے کہ مسیحا تو مانتے نہیں ہو، جو اصلی میرا مقصد ہے اس کی طرف تو تم جاتے نہیں ہو، ہے نا۔ جیسے یسوع نے اپنی تعلیم میں بھی کہا کہ تم پدینے پہ ددائیہ کی دیتے ہو تو خدا کو دیتے نہیں ہو۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، اب وہ جنرل سے اسپیسیفک ہو رہا ہے، اور اب لوگوں کو اس نے کہا کہ تم نبی نہیں مانا جاتا، یہ تعلیم ہے،
ये सारा कुछ काम करते हो, इस तरह से आता है। अब एक शख्स आके उसने स्पेसिफिकली कहा कि भाई मेरा बेटा बीमार है, तो उसको आके तो शिफा दे दे। अब यीशु आगे जाके देखेंगे इसमें भी वो एक फ़र्क अपने तरीके से शिफा का काम करता है। तो उसमें यीशु ने कहा कि देखो, तुमको जब तक निशान ना मिले तो तुम ईमान नहीं लेके आते। अब आपको पता है कि जो ग्रीक हैं, ठीक है, यूनानी, वो क्या मानते हैं? तालीम मानते हैं, एजुकेशन, हिकमत की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो कहता है कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़की, कहाँ का शरक। यहूदी जो हैं वो हमेशा निशान थे। यीशु जब भी तालीम देते थे तो जितने यहूदी होते थे, अच्छा तेरी आमद के बाद क्या निशान होगा, निशान क्या तेरी मौत का क्या निशान होगा, तेरे उसके क्या होगा। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर साइंस एंड वंडर। और मौजूदा दौर जो है ना, वो भी कोई इतना फ़र्क नहीं है। आज हम भी क्या कहते हैं, हम निशान अपने तरीके से मांगते हैं ना। अच्छा अगर पास हो जाएंगे तो मानेंगे कि यीशु है, अगर ये नौकरी मिल जाएगी तो मानेंगे ये यीशु है। ठीक है कि नहीं है? कई तो इबादत तक को इसके साथ जोड़ देते हैं, बिल्कुल, कि अगर ये काम हुआ तो मैं इबादत करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है ना, बारिश ना हुई तो मैं जाऊँगा, नहीं हुई तो नहीं चले जाऊँगा, ठीक है ना। तो जो तस्वीर यहाँ पर वो कह रहा है कि क्योंकि उससे पहले वो दरख्वास्त दे चुका है कि तू चल कर मेरे उसके शिफा दे। अब वो ये भी तो सवाल कर सकता था ना कि बीमार है, यहीं से कह दे वो शिफा, आगे जाके वो बात करता है उसकी जिसकी जो है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कम एंड डू इट। शायद वो ये भी यीशु को टेस्ट भी करना चाह रहा हो, लिखा नहीं है लेकिन सोचा जा सकता है कि यीशु अब रूमी तो नहीं है, ये इनका लीडर है। अब क्या ये अपने लोगों को छोड़ के मुझे शिफा देने के लिए, मेरे बेटे को शिफा देने के लिए आएगा या नहीं आएगा? इसका भी टेस्ट हो जाएगा, शिफा भी हो जाएगी। शायद वो ये भी सोचता कि ये भी हो सकता है कि मैं भी लोगों को बता सकूं, देखो जी मैं इतने बड़े लीडर को घर लिया है ना। कन्वेंशन होती तो कहते हैं तुसी घर आके दुआ करो साढ़े, हालांकि उत्थे भी दुआ हो सकती है ना, उसकी भी आपको बातें बताएंगे। तो मल्टीपल जो चीज़ें हो सकती हैं ना। तो यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि देखें, एसेंस ये नहीं है कि तुम आए हो टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि मसीहा को तुम जानना चाहते हो, ये नहीं कि तुम मुझे जानना चाहते हो कि मैं इलाही शख्सियत हूँ, क्या हूँ, मौजज़ात हूँ, सारे कुछ हो, फिर तुम यकीन करोगे। लेकिन इस शख्स के ईमान के बारे में आगे जाके हम देखेंगे कि मुख्तलिफ स्टेजेस उसके ईमान की हम नजर आती है। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस स्पेसिफिक चीज़ को लेके जनरल चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जब तक तुम्हारे सामने मौजज़ा ना होए, निशान ना दिखाए जाएं, तुम ईमान नहीं लाते। इसीलिए यूहन्ना आगे जाके कहता है जो बगैर देखे उस पर ईमान लाए। ये उसका मकसद है कि वो उस पर ईमान लेकर आए। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो बिशप साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन यहाँ पर जैसे हम इस बात को पढ़ते भी हैं कि और यहूदियों के ताल्लुक से भी बताया है, और जिस तरह से दीगर अक़वाम भी इस तरह से पीछे पड़ी रहती थी निशान के, और कोई ना कोई साइन देखना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर उन्हें बताया कि तुम्हें यूना के अलावा कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से यूना जो है वो 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। वो इस बात को भी ना समझे, खुदावंद यीशु मसीह ने साइन दे भी दिया, वो साइन पूरा भी हो गया, इसके बाद भी वो ईमान नहीं लाए हैं। इसके बाद भी उससे वही सवाल करते हैं जो स्टिल उनके ज़हनों में अड़ा हुआ है और फंसा हुआ है, तेरी बादशाही कब आएगी। वो फिर जी उठने के बाद भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या अभी तू इसराइल को बादशाही फराहम करेगा या फिर से बहाल करेगा। मतलब वो अभी तक वही चाहते हैं जो उनका ज़हन है कि मसीह को ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। वो कभी भी वो ना बने जो मसीह चाहता था कि वो बन जाएं। सो वैसा बनने की ज़रूरत है जैसा मसीह चाहता है। आगे बढ़ेंगे और वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 49वीं आयत में लिखा है, बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ए खुदावंद मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। वसीम साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ जो एक बाप है उसकी जो इंटेंसिटी नज़र आ रही है, जो उसके अंदर तलब और एक तड़प नज़र आ रही है, जो एक भूख और प्यास, आप ज़रा रहनुमाई फरमाएं, इसकी वजाहत करते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 45वीं आयत में इसका हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, इसलिए कि जितने काम खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। और यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि शायद ये जो बादशाह का मुलाज़म है ये कहीं वहाँ
सुना होगा या देखा होगा। वो बिशप साहब ने भी जिक्र पास किया, में हाँ। इसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो नॉलेज है खुदा यीशु मसीह से मुतल्लिक। और जब इसने खुदावंद यीशु मसीह को दरख्वास्त की है, वो सुनकर यीशु यहूदिया से गलील में आया है, तो उसके पास आया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। अब ये दरख्वास्त जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस एप्लीकेशन के ऊपर जो रिएक्शन दिया है वो इतना मुस्बत नहीं है। वो एक तरह से ये डांट डपट की बात आ गई है, जैसे आपने कहा कि लगता है कि जैसे इसका मतन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। इसी किस्म का एक मौजज़ा सूरफनी की औरत का भी था, जो अपनी बेटी की शिफा के लिए आई और उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना। और उसने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि खुदाबंद कुत्ते भी तो मालकों के गिरे हुए टुकड़ों से शेर होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। अब उसी किस्म का ही कि ये कहानी जो चली है यहाँ पर, अब आए 49वीं आयत पर। खुदावंद यीशु मसीह की इस डिस्करेजमेंट से उसने कोई नोटिस नहीं लिया, वो अपने मिशन पर ही है। यानी खुदावंद यहाँ उसने कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं खुदावंद मैं कोई निशान नशून नहीं चाहिए मैनू, या शिव काम नहीं चाहिए, मुझे शिफा दे। नहीं, उसने खुदावंद यीशु मसीह की जो सख्ती है उसको खंदा पेशानी से सुनते हुए अपना फोकस ने, अपने हसूल को उसने नहीं छोड़ा। अपना जो मिशन है, जो वो हासिल करने के लिए आया है, उसको नहीं छोड़ा, चाहे डिस्करेजमेंट आई है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तो ये कंस्ट्रक्टिव है ना, मतलब ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ये मुस्बत कदम है। हाँ। कि अगर ये आया है तो इसकी इंटेंशंस क्या है, ये क्या चाहता है ये। तो खुदावंद यीशु मसीह ने गो कि ये नेगेटिव सा लगता है, लेकिन है ये मुस्बत, है पॉजिटिव, है मुस्बत ये। निशान और अजीब काम ना देखोगे हरगिज़ ईमान ना लाओगे। यानी यीशु मसीह ने कहा है कि तुम वो लोग हो, जब तक तुम्हारे सामने मौजज़ा वगैरह नहीं हुआ तुम लोग ईमान नहीं लाते, तो क्या शिफा लेनी है तूने। अब आए 49वीं आयत की तरफ। जो ग्राउंड्स ये है, बादशाह के मुलाजिम ने, बिशप साहब ने भी बताया कि ये असल में डियाकोनोस भी नहीं था, डूलोस भी नहीं था। यहाँ पर जो इसका है ये बसीलिकोस है, यानी ऐसा आदमी जो बादशाह के करीबी ऑफिसर्स में से है। गो कि उसको बादशाह का मुलाजिम लिख कर उसको जस्टिफिकेशन दे दी है कि वो नौकर टाइप नहीं था, कोई सफाई सुफाई करने वाला नहीं था। ये अच्छी पोजीशन, ये ऑफिसर था, यानी बादशाह। यहाँ तक कहने कि ये नेक्स्ट टू द किंग होता है जो वो था। और यहाँ पर उसकी हैसियत का अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो बादशाह भी है, बादशाह की तरह का, उसी लेवल का। अगर बादशाह से थोड़ा कम है तो यहाँ उसके अंदर गुरूर और तकब्बर पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ इस पर है नहीं, पाया नहीं जाता। बादशाह का जो मुलाजिम है बसीलिकोस जो है, उसने कहा ए खुदावंद। अब यहाँ देखें मोड़ कैसे उसने लिया है। यहाँ वो खुदावंद यीशु मसीह को थियोलॉजिकली अंडरस्टैंड कर रहा है। अब वो खुद खुदावंद है, बेसिकली देखा जाए तो लोग उसको अपने प्रोटोकॉल में उसको खुद खुदावंद कहते होंगे। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप की खुदाबंदियत का इनकार कर रहा है, अपनी शान व शौकत का इनकार कर रहा है। और यहाँ पर उसको मुलाजिम कहकर बड़ी जस्टिफिकेशन दे दी है कि यहाँ पर वो चाहे जो भी पोजीशन रखता है, खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसने अपने जिस्मानी या दुनियावी स्टेटस को पसे पुश डाल दिया है। और वो यीशु मसीह का इकरार कर रहा है कि तू खुदावंद है, मैं खुदावंद नहीं हूँ। और जब हम दुआ अरमानी करते हैं ना, तो हम कहते हैं तेरी बादशाही आए। तो हम ये नहीं कहते कि मेरी बादशाही जाए, क्योंकि हम अपनी बादशाही भी रखते हैं और उस वक्त तक तेरी बादशाही नहीं आएगी जब तक मेरी बादशाही नहीं जाएगी। सो अंदर हमें दुआ में ये कहने है खुदावंद मेरी बादशाही जाए और तेरी बादशाही आए। हम दुआ कर देते हैं तेरी बादशाही आए, वो आती नहीं है। आती इसलिए नहीं है, इसकी अगर बादशाही आई है, क्योंकि खुदावंद की बादशाही ये नहीं कि ताज पहनाया जाएगा। खुदावंद की बादशाही ये है कि आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी,
آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی, آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. یہاں اس نے کہا میری بادشاہی جائے اور خداوند تیری بادشاہی آئے. اب اس ملازم کی زندگی میں خداوند کی بادشاہی آئے اور اس نے کہا اے خداوند, اور یہاں پادری صاحب خداوند کے لیے وہی لفظ ہے جو کوریوس استعمال ہوا ہے. اور کوریوس ایک تھیولوجیکل ٹرم ہے یونانی زبان میں جو یاوے سے ٹرانسلیٹڈ ہے, یہوہ سے ٹرانسلیٹڈ ہے. اور کوریوس کو انگریزی میں the Lord اور اردو میں اے خداوند کہتے ہیں. اور یہاں پر کنفیشن جو ہے اس شخص کا, اس نے کہا کہ خداوند میری بادشاہی چلی گئی ہے میری زندگی میں, اب تیری بادشاہی ہے. اب یہاں اے خداوند کہا کہ میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل. اب یہ میرے بچے کے مرنے سے پہلے کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ بھائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ سیریس بیماری ہے, لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ آپو تھانین لفظ ہے, اس کے مرنے کے لیے بتایا گیا ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو صرف موت ہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کلینکلی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر جب کہہ دیتے ہیں جی ہماری طرف سے یہ فارغ ہے, تو اب اس کے پاس یہ علم ہے, اس وقت کا کلینکل نالج جو ہے اس کے پاس موجود ہے. اس کو پتا ہے کہ اب میرا بیٹے نے مرنا ہی مرنا ہے, اب میرے بیٹے کی زندگی. یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا نا یونانی کا, یہ تھانوتوس سے نکلا ہوا ہے. تھانوتوس کہتے ہیں موت کو. اب یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی موت یقینی ہے. اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بچہ زندگی میں واپس آ جائے. یعنی اس کو پتا ہے کہ میرا اب بچہ جو ہے وہ مرے گا ہی مرے گا. اب یہاں پر اس نے اپنے بچے کے لیے بتایا کہ مرنے سے پہلے, یعنی مرنا تو اس نے ہے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ مر جائے تو چل, تو اس کے پاس چل. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جنہوں نے کبھی اپنے مرتے ہوئے بچوں پر غور نہیں کیا. جیسے آپ نے کہا ہے کتنے بچے ہمارے نشے میں مر رہے ہیں, کتنے بچے دنیا داری میں مر رہے ہیں, کتنے بچے ٹیکنالوجی میں مر رہے ہیں. تو کیا ہمارا بھی ایسا کنسرن ہے کہ خداوند میرے بچوں کے مرنے سے پہلے چل؟ تو یہ اپیل ہے میری کہ اپنے بچوں کے مرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو ان کے پاس لے جائیں. پریز گاڈ. بہت زبردست اپیل, اور ماں باپ کے لیے اور جتنے بڑے ہیں ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج بہت سارے بچے ہیں, ہم انکریج بھی کرتے ہیں ان پیرنٹس کو, ماں باپ کو, بچوں کو بھی, جو خدا کے کلام کو بھی سیکھ رہے ہیں, اسی طرح سے سیکولر تعلیم میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد ہے جو تعلیمی میدان میں نہیں ہے, جو خدا کے کلام سے بہت دور ہیں. ماں باپ بھی دور ہیں, بچے بھی دور ہیں. سو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے, ایفرٹ کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے, جس تک ہم خدا کا کلام پہنچا سکیں, کہ ہم ان کے لیے بھی نجات کا باعث بنیں, ماں باپ کو سکھائیں, تربیت کریں. کئی دفعہ ہوتا پاسٹر صاحب یہ ہے کہ کلام بھی وہی سن رہے ہوتے ہیں, یا چرچ میں بھی, سیمینارز میں بھی وہی آتے ہیں جو ٹھیک ہیں, جو خراب ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس طرح بھی شاید بہت کم لوگوں تک جو خراب ہیں نا ان تک تو آواز بہت کم جاتی. تو ہماری پھر ڈیوٹی ہے, یعنی جو ہم یہاں موجود ہیں, اس کے علاوہ جو آپ سب سن رہے ہیں, کہ ہم پھر پرسنلی جائیں ان کے پاس. اگرچہ وہ چرچ نہیں جاتے, کوئی سیمینار اٹینڈ نہیں کرتے, یہ اس طرح کا کوئی تعلیمی پروگرام نہیں دیکھتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ان تک جائیں. کیونکہ مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو سب وہی دیکھتے ہیں جو ہم کلام کو سمجھتے ہیں, عمل کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں. لیکن جو ایسے لوگ ہیں وہ چونکہ نہ دیکھتے ہیں, نہ ان تک کلام پہنچتا ہے, اور پھر چونکہ کلام نہیں پہنچتا تو زندگیاں تبدیل بھی نہیں ہوتی ہیں. سو اس لیے پرسنلی ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے کہ ہم شخصی طور پر ان کے گھروں میں جائیں, بچوں سے ملیں, ماں باپ سے ملیں, تاکہ ان تک خدا کا کلام پہنچے, اور ان کو چرچ لائیں. ان کو کوئی ایسا پروگرام جیسے کلام روشنی یا اس طرح کے کوئی اور پروگرام, تعلیمی پروگرام کی طرف لائیں, تاکہ وہ سنیں اور ان کی زندگیاں بدلیں, تبدیل ہوں, اور ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکے مسیحی معاشرے میں, اور ہم ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ آئندہ مستقبل میں لا سکیں. تھینک یو سو مچ. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی بات ہے جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں, اس افسر سے. کبھی کبھی ہم اپنے کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں
और हम कहते हैं कि ये मेरे ओहदे के खिलाफ है ओह वाह, है ना, अफसर नौकरों के हवाले। अब देखिए कई दफ़ा माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं लेके आते, किसी भांजे के साथ किसी भतीजे के साथ जाओ जी संडे स्कूल ले जाओ या किसी और प्रोग्राम में। यस, तो इस अफसर का, मुलाजिम का शख्सी अपने बच्चे के साथ ताल्लुक़ देखे कितना गहरा है। जबरदस्त, उसने ये नहीं कहा कि मैं बादशाह के बहुत करीब हूँ, कुछ हूँ। उसने कहा यीशु चल, वो काम करने के लिए तैयार है जो शायद मुआशरे की नज़र में ठीक नहीं है, लेकिन उसने कहा वो चल, कम 20 मील का सफ़र करके तय करके आया, है ना। यस, जब तक हम अपने अजीज़ों के साथ शख्सी वक्त नहीं गुजारेंगे हमें बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। वाह वाह वाह, जो पासबान अपनी कलीसिया के मेंबरों के साथ शख्सी वक्त नहीं गुजारता उसको उनकी बीमारियों का पता नहीं चलेगा। यस, जो वालिदैन शख्सी तौर पे बच्चों से रब्ता कायम नहीं करेंगे बीमारियों का पता नहीं चलेगा। डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है। एक दफ़ा गाड़ी मेरी ख़राब हो गई, कहता है मकैनिक वो है जो फॉल्ट ढूंढे, जब फॉल्ट ढूंढ लिया तो मरम्मत तो कोई भी कर सकता है। यस, तो आई थिंक एज पेरेंट्स, एज पास्टर्स वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारा लोगों के साथ कितना लिंक है, कैसे पता चलता है कि कैसा। और जब लोगों के साथ आप बैठते हैं ना, शोल में लेके बात करते हैं, फिर आपको इंसान की असलियत का पता चलता है। नहीं तो हम कवर ही एक चेहरे पे कई चेहरे सजा रखे हैं, वो पता नहीं चलता उस तरह से। यस, थैंक यू सो मच। बड़ी ही ज़बरदस्त बातें और बड़ी अपीलिंग बातें हैं, ताकि हम इनका इतलाक़ अपनी ज़िंदगियों में करें और बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत बने। बतौर मसीही हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों तक इंजील को पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू बिशप साहब। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त दे सकते हैं, टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।